Morning class 8th. Today we will start our chapter number 16. It's a parallelogram. Okay. As you know, this is your maths teacher Ravi, and so today we will start parallelogram. What is a parallelogram? Okay. Two pair of parallel side is called a parallelogram. Two pair of parallel side like A, B, C and D. Means AB should be parallel to CD and BC should be parallel to AD. Okay. Two pair of parallel side is called a parallelogram. It's a type of quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल हमने पहले पढ़ रखा है. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? फर्स्ट ऑफ ऑल इससे भी डिस्कस कर लेते हैं. क्वाड्रिलेटरल, a closed figure with four sides is called quadrilateral. A closed figure with four sides is called quadrilateral. Quad means four, lateral means side. Again I am repeating in this video. Quad means four, lateral means sides. So a closed figure with four sides is called quadrilateral and parallelogram is a type of a quadrilateral. इसी में हमको पढ़ना है अभी. यहीं पर आज मैं डिस्कस करूंगा पैरेललोग्राम, आपका रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रेपेजियम एंड वन मोर काइट. ओके, तो ये प्रॉपर्टीज हमको क्लियर होनी चाहिए कि क्या काइट है, काइट की क्या प्रॉपर्टीज हैं, रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज हैं, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज हैं, रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज हैं, स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टीज हैं. क्लियर ना? सो पैरेललोग्राम, two pair of parallel side is called parallelogram. Two pair of parallel side. Simply हमको बस लैंग्वेज में अपना समझना है. Two pair of parallel side. Two pair. Pair means two sides. दो sides का जो एक पेयर बनेगा means AB and CD and BC and AD. अब क्वेश्चन आता है कि जब दोनों आपस में पैरेलल हैं, अपोजिट साइड से पैरेलल हैं, तो ये इक्वल भी होंगी. सो in parallelogram opposite sides are equal. In parallelogram opposite sides are equal. In parallelogram opposite angles are equal. In parallelogram opposite angles are equal. Okay, अगर ये एक अपोजिट है, A के अपोजिट C है, then अपोजिट ऑफ B it's a D. क्लियर ना? Opposite sides are equal, opposite angles are equal. Opposite sides are equal, opposite angles are equal. I am repeating again and again. बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये दिमाग में सेट हो जाए. पैरेललोग्राम क्या है? Two pair of parallel side is called parallelogram. Two pair of parallel side is called parallelogram. Okay. Now, opposite sides are equal, opposite angles are equal. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल जो होते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं दोनों आपस में. ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी विल बी इक्वल टू ओ बी. क्लियर? पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम आपको बनाया है. पैरेललोग्राम. सिमिलरली यहां पर हम बात कर लेते हैं रोम्बस की. इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल. इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल. AB, BC, CD, AC, ओके, AD, सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी. इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल. In rhombus all sides are equal. Okay. In a parallelogram opposite sides are equal. यहाँ पर क्या था? opposite sides equal थी. rhombus में क्या होगा? all sides equal है. rhombus all sides equal means AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. And one more thing, in rhombus opposite angles are equal. Means if A is equal to C, then B will be equal to D. Okay, and
सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री इन पैरेललोग्राम, इन रोम्बस। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। इसको हमें बिल्कुल माइंड में सेट रखना है। सम ऑफ adjacent angle is 180 degree in parallelogram, in rhombus, in rectangle, in square। चारों में हमारे जो adjacent angle होंगे। अब now फिर से बात कर लेते हैं एक बार, what are adjacent angles? adjacent मैंने आपको बताया था, adjacent means आपका पड़ोसी। ओके, adjacent means आपका पड़ोसी। so if we are talking about the adjacent angle, so एडजेसेंट एंगल ऑफ बी इट्स सी एंड ए। बी का एडजेसेंट एंगल कौन सा है? सी है और ए है। सी का एडजेसेंट एंगल कौन सा है? बी है और डी है। ओके, नाउ वाज रोम्बस एंड इन रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इन रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस में। इन रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जो डायगोनल के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। मीन्स एंगल COD इज 90 डिग्री। एंगल COD 90, एंगल BOC 90, एंगल BOA 90, एंगल AOD 90। ओके, सो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हैं। बाइसेक्ट ईच अदर आपस में एक दूसरे को तो बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं। मीन्स अगर ये है, क्लियर ना, तो बराबर पार्ट ये और ये बराबर होगा और ये बराबर होगा। क्लियर? मीन्स अगर हम लैंग्वेज की बात करें, OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। ओके, now what is square? What is square? पढ़ा है, बहुत छोटी क्लास से हम स्टार्ट कर देते हैं स्क्वायर को पढ़ना। स्क्वायर हम 3rd या 4th क्लास से शुरू कर देते हैं कि स्क्वायर क्या होता है, ट्राइंगल क्या होता है। इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। इन स्क्वायर all sides are equal। in square all sides are equal, all angles 90 degree। ओके, सारे के सारे एंगल कैसे होंगे? 90 डिग्री के होंगे। मीन्स वी कैन से ऑल एंगल्स हैविंग 90 डिग्री। ओके, सारे के सारे राइट एंगल होते हैं, बोल सकते हैं राइट एंगल्स। ओके, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट भी करते हैं और यहां पर भी हमारा 90 डिग्री। ओके, स्क्वायर बहुत आसान है स्क्वायर। अब यहां पर जो प्रॉपर्टी मैंने बोला था, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या यहां पर अपोजिट एंगल इक्वल हैं? यस, 90 90 90 90। जब चारों ही इक्वल हैं तो अपोजिट भी इक्वल होगा। चारों इक्वल हैं अपोजिट, तो अपोजिट भी इक्वल होगा। और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। 90 + 90 180, 90 + 90 180। मीन्स कि कोई भी दो एंगल आप ऐड करोगे 180 ही मिलना है। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, ऑल एंगल्स हैविंग 90 डिग्री। ओके, नाउ इट वाज स्क्वायर। नाउ इट्स a rectangle. What is rectangle? A, B, C, D. Opposite sides are equal in rectangle. Opposite sides are equal, same as parallelogram. Opposite sides are equal in rectangle, same as पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में सारे एंगल 90 के नहीं थे। इन रेक्टेंगल ऑल एंगल्स हैविंग 90 डिग्री, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर? ये यहाँ पर डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। मोस्टली केसेस में पूछा जाता है डायगोनल बाइसेक्ट 90 डिग्री पर
कौन से क्वाड्रिलेटरल में करते हैं? तो योर आंसर होगा आपका क्या होगा? रोम्बस एंड स्क्वायर। इन रोम्बस एंड स्क्वायर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। In rhombus and square, diagonal bisect each other at 90 degree, but in parallelogram and rectangle, diagonal bisect each other only. Okay, not at 90 degree. 90 degree पर नहीं bisect करते हैं, 90 degree पर कहाँ करेंगे? In a parallelogram, in rhombus and in square. Okay, rectangle. Opposite sides are equal, all angles having 90 degree, diagonal bisect each other. Clear na? Now next, trapezium. ट्रेपेजियम को in trapezium one pair of parallel side is called a trapezium. Means AB जो है ये CD के पैरेलल है, AB is parallel to CD, so we can say one pair of parallel side is called a trapezium. One pair of parallel side is called a trapezium. Two pair of parallel side is called a parallelogram and one pair of parallel side is called a trapezium. सिंपली लैंग्वेज में याद रखना है, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड इज कॉल्ड ट्रेपेजियम एंड टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम. क्लियर? नाउ सो इन ट्रेपेजियम वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड मीन्स कोई भी आपका एक पेयर है जो पैरेलल साइड का होगा, पैरेलल साइड होंगी. मीन्स यहां पर हमारा AB और CD क्या है? पैरेलल हैं, बट AD एंड BC are not parallel. Okay. Now ट्रेपेजियम में एक हमारा प्रॉपर्टी है, एक टाइप है ट्रेपेजियम का, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम. आइसोसेल्स ट्रेपेजियम में क्या होता है? जो भाई नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. इन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल. इन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल. सो A, B, C, D and BC and AD are equal in this parallelogram. Means so we can say it is a isosceles trapezium because BC is equal to AD. जो आपका नॉन पैरेलल साइड्स होंगी, पैरेलल साइड कौन कौन सी यहाँ पर? AB and CD, AB and CD and non parallel sides are BC and AD, BC and AD. Okay, now the next is kite. Kite is a quadrilateral in which adjacent sides are equal. Kite is a quadrilateral in which adjacent sides are equal. वहां पर क्या होता है? adjacent sides आपकी equal होती हैं. Kite is a quadrilateral in which adjacent sides are equal. What is the meaning of adjacent side? Adjacent sides means आपकी जो साथ की sides हैं वो आपकी क्या होंगी? Equal होंगी. It means we can make it as like this: A, B, C and D. Here AB is equal to AD and BC is equal to CD. Adjacent sides are equal. ओके, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी. क्वाड्रिलेटरल में हमारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया एंड काइट. ओके, एक्सरसाइज हमारा स्टार्ट हो रहा है. इन एक्सरसाइज 16A द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ABCD is a parallelogram
इन विच एंगल ए इज 110. सपोज दैट ये हमारा पास पैरेललोग्राम दिया गया है. ओके, ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल ए इज 110 डिग्री. अभी मैंने जस्ट बताया है इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. Opposite angles are equal and sum of adjacent angle is 180 degree. Sum of adjacent angle is 180 degree and opposite angles are equal. So if angle A is 110 degree, if angle A is 110, so what about angle C? Angle C भी 110 होगा. Angle C भी 110 होगा because these are opposite angles. Angle A and angle C, these are opposite angles. So angle A is equal to angle C. Angle C भी 110 हो गया. Opposite angles of parallelogram. Okay, रीजन लिख देंगे आप, opposite angle of a parallelogram. Now what about angle B? What about angle B? Angle C plus angle B क्या होगा हमारा 180. Sum of adjacent angle is 180. Sum of adjacent angle is 180 means either we will use A plus B or B plus C. कुछ भी यूज करो, और A plus D. कोई भी एक हमको फाइंड आउट करना है, या हमको B पता चल जाए या हमको D पता चल जाए. So for getting the value of angle B, angle A plus angle B is equal to 180 degree and we know the value of angle A. So angle B will be 180 minus 110. The value of angle B will be 70. If angle B is 70, then angle D is also 70. Opposite angles are equal and sum of adjacent angle is 180 degree in a parallelogram. Opposite angles are equal and sum of adjacent angle is 180 degree. याद रखेंगे बिल्कुल. Next, two adjacent angle of parallelograms are equal. What is the measure of each of these angles? Orally question करते हैं, orally होगा ये. Two adjacent angles of parallelograms are equal means angle B and angle C दोनों क्या हैं, सेम है. X plus X is equal to 180 degree because sum of two adjacent angle is 180 degree. Sum of two adjacent angle is 180 degree. So we can write it as angle X plus angle X. हम क्या लिख लेंगे, let the one angle of parallelogram be X. So according to question, adjacent angles are equal. X plus X is equal to 180 degree. 2x is equal to 180. Then what is the value of X? X is equal to 180 upon 2. The value of X is equal to 90. एंड 90 अगर हमारा ये आया तो 90 ये होगा, 90 ये होगा, 90 ये होगा. इट मीन्स वो जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो रेक्टेंगल बन रहा है. बिकॉज इन रेक्टेंगल ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. राइट, बहुत आसान है. बस हमको कॉन्सेप्ट जो है, प्रॉपर्टीज जो हैं उनको ध्यान रखना है. प्रॉपर्टीज इस चैप्टर की आप पढ़ लें, जो क्लियर ना हो उसको मैं बताऊंगा, फिर से एक बार बता दूंगा. Clear? So revise it again. Now your 14, 15, 16 important chapter हैं और अच्छे chapter हैं. सिंपल तो बहुत ज़्यादा सिंपल है ये, ठीक है. बट हमको समझना है क्वाड्रिलेटरल है क्या, पैरेललोग्राम है क्या. टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में आपका पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, इसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन से मिलने वाले हैं. यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ. हाउ टू फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन. किसी भी पॉलीगन में इंटीरियर एंगल का सम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इससे पहले मैंने कराया है. रिवीजन मैं इसमें करा रहा हूँ. यहाँ पर n-2 इंटू 180 फॉर्मूला ध्यान रखना. n-2 इंटू 180. How to find the sum of all interior angles of any polygon. कोई भी पॉलीगन है उसमें हम कैसे सारे इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करेंगे. तो n-2 इंटू 180. n-2 इंटू 180. रिमेंबर इट. नाउ sum of all exterior angle of any polygon. Sum of all exterior angle of any polygon 360. Okay.
नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड द डायगोनल ऑफ एनी पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन में हमको डायगोनल फाइंड आउट करने हैं। क्या फॉर्मूला था हमारा? n ब्रैकेट n-3/2, n ब्रैकेट n-3/2। क्या फाइंड आउट करेंगे इससे हम? हाउ टू फाइंड आउट द डायगोनल ऑफ एनी पॉलीगन। तो फॉर्मूला इज n-3/2। ये हमारा है किसी भी पॉलीगन में डायगोनल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। क्लियर? तो रिवाइज इट, रिवीजन करते रहो। 16 को आई थिंक आपका मैथ्स का फर्स्ट एग्जाम है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, टुडे इज 14 एंड यू कैन आस्क एनी प्रॉब्लम टुमारो। ओके, तो टुडे एंड टुमारो यू हैव 2 days। सो रिवाइज करते रहो और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको पूछो, व्हाट्सएप करो, कॉल करो, कुछ भी करो। ठीक है, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।